السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، جس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں رکھی۔ ایپیسوڈ نمبر 13۔ راجکماری کمار دیوی آہستہ آہستہ ایبا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا اسی طرح زمین پر بچھے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب راجکماری کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے کسی قسم کے رد عمل یا تاثر کا اظہار نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمار دیوی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی نگاہیں ایبا پر جمی ہوئی تھی۔ قریب جا کر وہ رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کرنے میں ایبا نے پہل کر لی تھی۔ راجکماری، میں غلام ہوں اور تم مہر والا کے راجہ بھیم دیو کی بیٹی ہوں۔ ایک راجکماری کا راج محل سے نکل کر اس طرح ایک غلام کے کمرے میں تنہا آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کمار دیوی، میں غلام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، تم راجکماری ہو، تمہاری ذات پر دھبا بیٹھ جائے گا کہ نہر والا کی راجکماری تنہا ایک غلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کہنے لگی، جب راج محل کا پنڈت ادے مل تمہارے کمرے میں آیا تھا تو میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ پنڈت ادے مل تمہیں راہ راست پر لے آئے گا، لیکن تم بھٹکے ہوئے انسان ہو، اور پھر تمہاری یہ گفتگو جو ابھی تم نے مجھ سے کی ہے ایک شودر سے بھی بدتر ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر، تمہیں اپنے جیون کا ساتھی بنا کر کشتریوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم گرد و غبار کی طرح پستی کی طرف گئے ہو۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا کہنے لگا، بی بی، ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ انسان ذات برادری میں تقسیم ہو کر نہ کوئی عروج حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ پستی سے گلے ملتا ہے۔ انسان کے اعمال ہے جو اسے پستی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ برہمن، کشتری، ویش اور شودروں کی تقسیم اوچ اور سربلندی اور پستی کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایبا جب خاموش ہوا تب پہلے کی نسبت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، تم ہمارے دھرم اور ہماری ذات برادری کا مذاق اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو۔ ایبا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، بی بی، اس سے پہلے بہت سے لوگ تمہارے دھرم، تمہاری ذات برادری کی توہین کر چکے ہیں۔ میں توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ برہمنوں، کشتریوں اور ویشوں نے جو شودروں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک رکھا ہوا ہے اس کا اندازہ کرنا بی بی کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زر خرید غلاموں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زر خرید غلاموں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانی روح کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ گزشتہ جنموں میں وہ دیوتاؤں، دوسرے انسانوں یا جانوروں کے قالب میں رہ چکے ہیں؟ اسی طرح اس وقت جو روح موجود ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی انسانی جسم سے ہو، وہ اسے قالب کو عارضی طور پر چھوڑ دے گی تو کسی دوسرے جسم میں منتقل ہوگی۔ اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو کسی برہمن یا کسی اچھی ذات کے انسان میں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے معمولی سی بھی غلطی کی تو اس کے لیے دوسرا جنم بدترین جنم ہو سکتا ہے۔ شودروں کے ساتھ برے سلوک اور مذہب کا یہ تکلف دہ عقیدہ ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر جانتی ہوں بہت سے لوگ ہندو مت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی، تم کہتی ہو میں تمہارے دھرم کے خلاف بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے ہی آدمی تمہارے دھرم کے خلاف بول چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا تمہارے یہاں ایک شخص گوتم بدھ نے جنم لیا تھا۔ اس نے بدھ کی بنیاد رکھی۔ اس نے انسان کی 4 ذاتوں میں تقسیم کو مسترد کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مذہب پر کسی پنڈت اور برہمن یا گرو کی اچارہ داری نہیں ہے، اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے پنڈت یا برہمن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شخص بذات خود تمام مذہبی رسومات ادا کر سکتا ہے۔ ذات پات کے نظم کو اس نے عملاً ختم کر دیا، اور اپنی تعلیمات میں اس نے شودروں کو برابر کا شریک کیا، اور یہ واضح کر دیا کہ مذہبی تعلیمات کا حاصل کرنا اور ان پر عمل پیرا کرنا
کسی ایک قوم، گروہ یا ذات کی اچارہ داری نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عمل کے مراحل سے لازمی طور پر گزرنا ہوگا۔ اس نے مساوات انسانی کے نظریے کا پرچار کیا۔ اسی کو گوتم بدھ کی تعلیمات پر شودروں کو آزادی، عزت اور مساوات کی کرنیں نظر آئی۔ وہ صدیوں سے اس نظام میں بسے رہے۔ گوتم کی وجہ سے انہیں سانس لینے کا موقع ملا، اور تمہاری ذات اور برادری کی تقسیم ہی کی وجہ سے تمام پست اور نچلے طبقے کے لوگ گوتم بدھ کے گرد جمع ہو گئے اور بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ بی بی، اس طرح یہ جو تم کہتی ہو میں تمہارے دھرم کے خلاف باتیں کرتا ہوں، میں نہیں کر رہا، اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور پھر جو باتیں میں کر رہا ہوں بی بی، ان کی بھی تم ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دی، میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے بی بی، میں نے انہی سے پڑھ کر تم سے گفتگو کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں تمہارے دین دھرم سے واقف ہی نہیں تھا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کا غصہ، اس کی غضبناکی اپنی انتہا پر تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے کہنے لگی، تو تم صرف شودر ہی نہیں بلکہ ایک باغی قسم کے شودر ہو، اور تیری جیسے باغی کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ایبا نے بھی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کسی قدر تلخی میں کمار دیوی کو مخاطب کیا۔ کمار دیوی، اگر میں تمہاری نگاہوں میں واجب القتل ہوں تو پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لینا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا نام ایبا ہے، میں مسلمان ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جس لمحے میری موت لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تمہیں ایک شودر کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تمہاری عزت، تمہاری وقت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایبا کے ان الفاظ کا کمار دیوی نے اور برا محسوس کیا تھا، لہٰذا بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایبا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے روز شام کے قریب ایبا جب کھانا کھانے کے لیے بٹیار خانے کی طرف جا رہا تھا تو اچانک عظیم الدین اور غالب خان دونوں اس کے سامنے آ گئے اور بڑے غور سے ایبا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے انہیں مخاطب کیا، صاحبوں، تم مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ اس پر دونوں مزید اس کے قریب ہوئے۔ پھر عظیم الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم تمہارے متعلق تفصیل سے جانتے ہیں۔ تمہارا نام ایبا ہے، تم کہاں سے آئے ہو یہ تو ہمیں خبر نہیں۔ دیکھ عزیز بچے، میرا نام عظیم الدین ہے، اور یہ میرا جو ساتھی ہے اس کا نام غالب خان ہے۔ ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، سونے کے تاجر ہیں۔ یاد رکھنا، نہر والا میں کچھ سونے کی کانیں ہیں، لہٰذا یہاں سونا سستا ہے اور یہاں سے خرید کر ہم دوسرے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں۔ نہر والا کے باشندوں کے حسن و جمال اور زمین کی سرسبزی اور شادابی کا جواب نہیں تھا۔ آب رواں کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے لحاظ سے یہ شہر مشہور تھا اور ہندوستان کا بہترین علاقہ شمار کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب اس علاقے پر حملہ ور ہوا تو اسے بھی یہ علاقہ بہت پسند آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ چند سال وہاں قیام کرے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اسے واپس غزنی جانا پڑا۔ اس دور میں نہر والا میں سونے کی کان بھی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ خوشحال تھے۔ سونا سستا تھا، تاہم اس وقت نہر والا میں سونے کی کوئی کان نہیں۔ ہو سکتا ہے امداد زمانہ کے ہاتھوں یہ کان معدوم ہو چکی ہو۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم الدین پھر کہہ رہا تھا، دیکھ عزیز ایبا، ہم اکیلے یہاں نہیں آتے۔ شہر کے باہر خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ وہ خانہ بدوش قبیلہ بھی مسلمان کا ہے، اسے تم نو مسلم کہہ سکتے ہو۔ ہم لوگ یہاں سے سونا خریدتے ہیں۔ خانہ بدوش قبیلے کے لوگ دریا کے کنارے پائی جانے والی پلچی سے ٹوکریاں اور دوسرا گھریلو سامان بناتے ہیں اور شہر شہر فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح کافی روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تم اس بٹیار خانے میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہو۔ ہم نے جب پہلی بار تجھے زنجیر گھسیٹتے ہوئے ادھر آتے دیکھا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، لہٰذا ہم نے تمہارے متعلق تفصیل جانی۔ ہم نے کل بھی تم سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن افسوس جس وقت تم بٹیار خانے سے کھانا کھا کر نکلے ہم چاہتے تھے کہ ہم تمہیں روکیں، لیکن اسی وقت پیچھے سے راجکماری آ گئی۔ اس بنا پر ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تمہارے پاس زیادہ قیام کرنا بھی اچھا نہیں، تمہارے اور ہم دونوں کے لیے خطرات ثابت ہو سکتا ہے۔ تم یقیناً یہاں سے بھاگنا چاہو گے۔ بولو، اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو
तो हम तुम्हारी यहाँ से निकलने का एहतमाम कर सकते हैं। अबा की आंखों में चमक पैदा हुई, कहने लगा, यकीनन मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अबा का जवाब सुनकर दोनों खुश हो गए थे। इस बार गालिब खान बोल उठा, देखो नन्हे भाई, पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, किधर से आए हो और इनके चंगुल में तुम कहाँ आ फंसे थे। हमें ये तो पता है कि तुमने तीर अंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया, राजकुमारी को मुकाबले में जीता, फिर यहाँ लाए गए और फिर तुमने भागने की कोशिश की जिसकी बिना पर जंजीर पहना दी गई। गालिब खान के सवाल के जवाब में अहबा कहने लगा, साहिबो, मेरा ताल्लुक तकीन आबाद से है। यूं जानो मैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर की एक अकाई हूँ। यहाँ तक कहते कहते अहबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेबना खुशी का इजहार करते हुए अजीमुद्दीन बोल उठा, वह मेरे नन्हे भाई, तुम तो बड़े काम के और इंतहाई अहम शख्स निकले। शायद तुम्हें अभी तक पता ना होगा, सुल्तान शहाबुद्दीन मुल्तान पर हमलावर हो चुका है। करामातियों को उसने निस्त नाबूद कर दिया है। मुल्तान पर कब्जा करने के बाद शहर का नज़्म नुसुख उसने दुरुस्त कर दिया है और इस वक्त वो मुल्तान ही में अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए हैं। यहाँ तक कहने के बाद अजीमुद्दीन रुका, फिर किसी कदर राजदारी में अहबा को मुखातब करके कहने लगा, देख मेरे नन्हे भाई, ये जो बटियार खाने के सामने खुला इहाता है, हमारे खाना बदोश कबीले के लोग यहाँ किलीची की बनी हुई टोकरियाँ और दूसरा घरेलू सामान ला कर रखते हैं और यही से उठा उठा कर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त करते हैं। ये सामान वो गधों पर लाद कर लाते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद तक वो यहाँ क़याम करते हैं और उसके बाद अपने गधों पर बैठकर शहर से बाहर अपने पड़ाव की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक कहने के बाद अजीमुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अबा, मगरिब की नमाज के बाद अगर तुम किसी तरह राजमहल से निकलकर इस इहाते में आ जाओ तो हम तुम्हें बड़ी आसानी और हिफाजत के साथ शहर से बाहर निकाल सकते हैं। इस इहाते का दरवाज़ा ही नहीं खुला रहता और यही हमारे लोग सामान रखते हैं। अगर तुम ऐसा कर सको तो आज मगरिब की नमाज के बाद हम बड़ी बेचैनी से इस इहाते में तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसी इहाते के अंदर ही हम अपने दूसरे साथियों के साथ मगरिब की नमाज अदा करते हैं। अजीमुद्दीन जब खामोश हुआ तब अहबा बड़ी ममनूनियत से उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम भाइयों, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और अब जब के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान फतह करके मुल्तान में क़याम किए हुए हैं तो मेरी मंजिल भी मुल्तान ही होगी, लेकिन मेरे पास कोई सवारी का एहतमाम नहीं। मैं मुल्तान कैसे पहुँचूंगा? वो राजमहल के अस्तबल में एक से एक बढ़कर घोड़ा है, लेकिन मैं वहाँ से घोड़ा हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं रात के वक्त चोरी छुपे वहाँ से घोड़ा निकालने में कामयाब भी हो जाऊं, तब भी मुझे राजमहल के सदर दरवाजे से उस घोड़े को निकालना होगा। सदर दरवाजे पर हर वक्त पहरा रहता है। अगर मैं रात के वक्त चोरी छुपे वहाँ से घोड़ा निकालने में कामयाब भी हो जाऊं, तब भी मुझे राजमहल के सदर दरवाजे से उस घोड़े को निकालना होगा। सदर दरवाजे पर हर वक्त पहरा रहता है। अहबा जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अजीमुद्दीन कहने लगा, तुम्हें सवारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहर से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे लिए एक नहीं कई सवारियों का एहतमाम किया जा सकता है। सुनो, रात के वक्त जब तुम उस इहाते में आओगे तो हम तुम्हें अपने साथियों के साथ शहर से बाहर निकालेंगे। इससे पहले हम तुम्हारी सवारी का एहतमाम कर चुके होंगे। अहबा, खाना बदोश कबीले और शहर के दरमियान हमारा एक शख्स तुम्हारी सवारी के लिए घोड़ा ले खड़ा होगा। तुम उस पर सवार होना और मुल्तान की तरफ भाग जाना। इस पर अहबा गौर से अजीमुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, पर मेरे पास तो उस घोड़े की कीमत अदा करने के लिए रकम नहीं है। इस बार गालिब खान बड़ी हमदर्दी से बोल उठा, ऐ अजीज भाई, लानत भेज घोड़े की कीमत पर, वो घोड़ा तुम्हारा होगा। आने वाले दिनों में अगर हमारी तुमसे कभी मुलाकात हुई तो घोड़ा वापस कर देना, नहीं तो तू अपने पास ही रख लेना। वैसे हम यहाँ चंद हफ्ते क़याम करेंगे, इसके बाद हम ओच और मुल्तान का रुख करेंगे। हमारा अंदाजा है कि मुल्तान को फतह करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ओच के राजा पर हमलावर होगा। गालिब खान जब खामोश हुआ तब अजीमुद्दीन फिर बोला और अहबा को मुखातब करके कहने लगा, सवारी का तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा मसला ये जंजीर है जो तुम्हारे पाँव में पड़ी हुई है, जो तुम्हें हरकत नहीं करने दे रही। जब तक ये तुम्हारे पाँव में है ये तुम्हें भागने नहीं देगी। अजीमुद्दीन के अल्फाज पर अहबा की गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई, छाती तन गई। कहने लगा, मेरे मोहतरम भाइयों,
इस जंजीर से मैं जब चाहूँ जान छुड़ा सकता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, इस जंजीर से मैं जब चाहूँ जान छुड़ा सकता हूँ। इस जंजीर की तरफ गौर से देखो, इसकी कड़ियों में मेरी पिंडली के करीब कुफ्ल लगा हुआ है। ये कुफ्ल वैसा ही है जैसा कि घोड़ों को जब चराने के लिए खोला छोड़ते हैं तो इसके अगली दोनों टांगों में जंजीर डालकर कुफ्ल लगाते हैं। इस कुफ्ल के अंदर जो चाबी लगती है वो उसे घुमाना पड़ता है। इस कुफ्ल के अंदर एक कील है, चाबी कील के अंदर जाती है। उस कील के अंदर बीच होती है। बीचों की वजह से चाबी जब घूमती है तो उस बीच वाले कील को अपनी तरफ खींचती है तो कुफ्ल खुल जाता है। अब उसको खोलने का मेरे पास एक तरीका है, वो ये कि एक मोटा धागा लेकर इस सुराख में डाल दिया जाएगा जिसमें चाबी डाली जाती है और जिसके अंदर बीचदार कील है। धागे को उस सुराख में डालने के बाद उसे खूब बल दिया जाएगा। जब वो बीचदार कील के अंदर कहीं फंस जाएगा तब जब धागे को खींचा जाएगा तो ताला खुल जाएगा। ऐबा की इस गुफ्तगू से अजीमुद्दीन ऐसा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसे अपने साथ लपेट लिया और पिशानी चुम्मी और कहने लगा, अरे तुम कोई छोटी मोटी शय नहीं, तुम तो कमाल के आदमी निकले। अच्छा देखो, अब तुम बटियार खाने की तरफ जाओ। हमें ज्यादा देर यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, हम पर कोई शक भी कर सकता है। हम यहाँ से हटते हैं और बटियार खाने के सामने जो खुला इहाता है, हम वहाँ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अब तुम जाओ, जाकर खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। ऐबा की इन गुफ्तगू से खुश हो गया, दोनों से सलाम किया और बटियार खाने की तरफ चला गया। जबकि अजीमुद्दीन और गालिब खान दोनों बटियार खाने के सामने जो खुला इहाता था उसकी तरफ हो लिए थे। सूरज हर शय से अपनी लिमस की हिद्दत को सिमटता हुआ जब गुरूब हो गया तब रात का आंचल दराज होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तीर की खामोशी गूंजी। लम्हों की तरह चारों तरफ खामोशियों का राज बढ़ने लगा था। ऐसे में ऐबा अपने बिस्तर से उठा, कमरे के दरवाजे पर आया। दरवाजे का एक पट खुलकर राजमहल के खुले सहन की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था, चारों तरफ खामोशी और वीरानी थी। एक बार उसने अपना सर बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा, वहां भी कुछ ना था। पांव से बंधी हुई जंजीर को सिमटता आवाज पैदा किए बगैर बाहर निकला। दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता दूसरे कमरे के उस दरवाजे की तरफ गया जो सहन के दूसरी तरफ खुला था। जब वो दरवाजे के करीब आया तो उसने देखा दरवाजे पर वैसा ही कुफ्ल लगा था जैसा कुफ्ल उसके पांव में पड़ी जंजीर में था। उस कुफ्ल को वो शायद पहले ही देख चुका था। बाएं हाथ से उसने कुफ्ल को पकड़ा, उसके दाएं हाथ में एक मोटा सा धागा था। उसे उसने कुफ्ल के सुराग में डाला जिसमें कुफ्ल का बीचदार कील था। धागे को डालने के बाद उसने आगे के दोनों सिरे पकड़कर उन्हें बल देना शुरू किया। उसके बाद जब उसने धागे को अपनी तरफ खींचा तो कुफ्ल खुल गया। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। फिर वही धागे जिससे उसने बाहर वाला ताला खोला था, उसी धागे से उसने अपने पांवों की बंदी जंजीर का कुफ्ल भी खोल दिया। फिर उसके बिस्तर पर जो 2 तकिए रखे थे उन्हें और एक तोशक को उसने अंदर बिस्तर के ऊपर शक्ल देकर ऊपर चादर डाल दी जिससे यूं लगे कि बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। उसके बाद वो मजीद हरकत में आया। जो जंजीर उसके पाँव में बंधी थी जिसे वो अब उतार चुका था उसे बिस्तर के चादर के नीचे डाल दिया। दूसरे कमरे के उस दरवाजे की तरफ गया जिसे बाहर से कुफ्ल लगाया हुआ था। उसी दरवाजे से वो बाहर निकला। जो कुफ्ल उसने वहां से खोला था उसने वही लगा दिया। एक बार फिर दाएं बाएं आगे पीछे उसने राजमहल के सहन का जायजा लिया। जब उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं, खामोशी है, तब वो राजमहल की दीवार फांद कर बाहर निकल गया था। दीवारों के साथ चिपकता अंधेरे के अंदर वो आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि उसके इहाते के पास पहुंच गया जिसकी निशानदेही अजीमुद्दीन और गालिब खान ने की थी। जब वो इहाते के अंदर गया तब एकदम से एक तरफ से अजीमुद्दीन और गालिब खान नमूदार हुए। ऐबा के करीब आए और बड़ी हमदर्दी से उसे मुखातब करके कहने लगे, हमारे अजीज़ भाई, तुम खुशकिस्मत हो, तुम यहाँ पहुँच गए और किसी को खबर भी नहीं हुई। देखो हमारे साथी जो सामान फरोख्त होने से बच गए हैं उसे समेट चुके हैं, अब शहर से बाहर निकलते हैं। इस पर खदशात का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दरवाजे के मुहाफिज तुम लोगों की तलाशी ले और मुझे पहचान कर पकड़ लें। इस पर अजीमुद्दीन उसका शामा थपथपाते हुए कहने लगा, नन्हे भाई, ऐसे नहीं होगा, इसलिए कि शहर में दाखिल होना और इस वक्त शहर से बाहर निकलना हमारा रोज़मर्रा का काम है। शहर वालों को पता है कि जो सामान हमारा फरोख्त होने से बच जाता है उसे समेटने और अपने गधों पर लादने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए हमें देर हो जाती है। इस बिना पर वो हमें रोकते नहीं। इसके साथ ही अजीमुद्दीन के करीब
ही खड़े एक गधे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, अब चुपचाप इस गधे पर सवार हो जाओ। ऐबा जब उस गधे पर सवार हुआ तब गालिब खान ने करीब ही पड़ा हुआ टोकरियों का एक गड्ढा उसके सामने रख दिया। कहने लगा, इस कट्टे को थाम कर रखना, दरवाजे से बाहर निकलते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, इन टोकरियों के गट्टे पर ही निगाह रखना और हम तुम्हें दरमियान में रखेंगे। हमारे कुछ साथी तुम्हारे आगे और कुछ साथी पीछे होंगे, बीच में तुम होंगे। इस तरह किसी को शक नहीं होगा। फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अजीमुद्दीन और गालिब खान अपने साथियों के साथ गधों पर सवार हुए। जो सामान फरोख्त होने से बच गया था वो उन्होंने अपने आगे रख लिया था। इस तरह गधों का वो कारवान शहर के मगरिबी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जब वो दरवाजे के करीब गए तो गधों का कारवान को देखते ही शहर के मुहाफिजों ने दरवाज़ा खोल दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए ऐबा के चेहरे पर भी इत्मीनान फैल गया था। उसने मुहाफिजों की तरफ नहीं देखा। अपने सामने जो उसने टोकरियों का गट्ठा पकड़ रखा था उस पर ही नज़र जमाई रखी। इसके अलावा वो अजीमुद्दीन और गालिब खान के बीच में था। कुछ गधे आगे कुछ उसके पीछे थे। इस तरह गधों का वो कारवान बगैर किसी रुकावट के नहरवाला की फसील के गरूबी दरवाजे से बाहर निकल गया था। शहर से लगभग 2 फरलांग के फासले पर उनका खाना बदोश पड़ाव था। अभी वो पड़ाव के नज़दीक ही पहुंचे थे कि सामने रात के अंधेरे में सियाह रंग का एक घोड़ा खड़ा था। उस पर जेन डाली हुई थी और एक शख्स उसकी बाग पकड़े खड़ा था। उस घोड़े के पास जाकर गधों का कारवां रुक गया। अजीमुद्दीन और गालिब खान दोनों अपने गधों से उतर गए। फिर दोनों ऐबा के पास आए। ऐबा के गधे के सामने जो टोकरियों का कटा था वो पकड़कर उन्होंने नीचे उतार लिया। ऐबा को भी नीचे उतरने के लिए कहा। ऐबा जब नीचे उतरा तब अजीमुद्दीन ने उसे मुखातब करके कहा, सुन नन्हे भाई, ये सामने जो सियाह रंग का घोड़ा है इस पर सवार हो जाओ। जिस कदर तेज़ी से घोड़े को भगा सकते हो उसे भगाकर मुल्तान का रुख कर लो। लेकिन एक बात मैं तुम में से कहूँ, यहाँ से सीधे मुल्तान की तरफ ना जाना, ओज से होते हुए मुल्तान जाना। हो सकता है इस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर ओज पर हमलावर होने के लिए कूच कर चुका हो। इस तरह तुम सुल्तान के लश्कर में बासानी शामिल हो जाओगे। शहर के अंदर से हम बहिफाजत बाहर निकल आए हैं। तुम्हारे भागने की किसी को खबर नहीं होगी। अगर रात की तारीकी ही में तुमने काफ़ी फासले को सिमट लिया तो फिर कोई भी तुम तक पहुंचने नहीं पाएगा। अब वक्त ज़ाय ना करो, आगे बढ़ो, घोड़े पर सवार हो जाओ। ऐबा कुछ देर तक बड़ी ममनूइयत से उनकी तरफ देखता रहा। बारी बारी दोनों से गले मिला, फिर धीमी से लहजे में कहने लगा, साहिबो, तुम जैसे मेहरबान, तुम जैसे मोहसिन ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। अगर ज़िंदा रहा, मेरी ज़ियत ने मुझसे वफ़ा की तो तुम्हारी इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊँगा। इसके साथ ही बारी बारी उन दोनों से गले मिला, मुसाफा किया, उनके साथियों को भी खुदा हाफिज़ कहा। आगे बढ़कर उसने उस शख्स से घोड़े की बाग ली जो घोड़े को पकड़े खड़ा था। पाँव रकाब में जमाया, घोड़े पर सवार हुआ। रात की तारीकी में एक बार फिर उसने हाथ लहराया। फिर एक बेमिसाल और नायाब शह सवार की तरह घोड़े को एड़ लगाई और दूसरी ही लम्हे घोड़ा जुस्त लगाते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद ऐबा घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वो शहर का रुख कर रहा था, जबकि खाना बदोश अपने गधों को हाँकते हुए अपने पड़ाव की तरफ जा रहे थे। अगले रोज़ दोपहर के करीब राजा भीमदेव, रानी राज कंवल, राजकुमारी कुमार देवी और राजकुमार रामदेव खाना खाकर जब फारिग हुए तब रामदेव कुछ सोचते हुए अपने बाप भीमदेव को मुखातब करके कहने लगा, पिताजी, ये ऐबा नाम का लड़का इतना बुरा नहीं जितना हमने उसे बुरा बनाकर उससे बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे मुलाकात करना चाहिए लेकिन कुमार देवी ने मुझे मना कर दिया था। इस बिना पर मैंने कल पंडित उदयमल को उसकी तरफ भेजा था, लेकिन उदयमल भी उसे अपना हम नवाब ना बना सका। इसके बाद कुमार देवी ने भी उससे मुलाकात की, लेकिन जो कुछ हम उससे मनवाना चाहते थे वो माना नहीं। पिताजी, कुमार देवी ने उसके मुंह पर तमाचे मारे थे। मैं पूछता हूँ कि इसके साथ ये सलूक किस जुर्म की बिना पर किया गया। ठीक है, वो यहाँ से भागा था। उसका भागना हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि हमने यहाँ राजमहल में उसे हर तरह का आराम और सुकून मुहैया किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उस पर हाथ उठाएं। उसे पूछना चाहिए था कि उसे यहाँ क्या तकलीफ़ है। अगर ना भी बताता तब भी हम पहले की निस्बत उससे और ज़्यादा अच्छा सलूक करते तो शर्मसार होकर हमारे साथ रहने के लिए आमदा हो जाता। पिताजी, जैसे वो खुद ही बता चुका है कि वो गुलाम रहा है, अकेला है, उसका आगाह पीछा कुछ नहीं। फिर हम उसे प्यार चाहत और मोहब्बत भागने के बाद भी देते तो मैं समझता हूँ वो अपने अंदर ज़रूर तब्दीली पैदा कर देता। अब ये जो हमने उसके पाँव में जंजीर डाल दी है, क्या ये सलूक हमारी तरह जायज़ है? क्या वो इसका हकदार है? आखिर उसने क्या जुर्म किया है? सिर्फ भागा है। हो सकता है यहाँ से उसे किसी ने अपनी जान का खतरा हो और वो भाग खड़ा हो सकता है राजमहल के अंदर या बाहर से किसी धर्म पुजारी ने उसे धमकी दी हो और उसने भागने में ही अपनी आफियत जानी हो। क्या किसी ने उससे भागने की वजह पूछी?
ना माता ने ना पिताजी ने। आपने रहा सवाल कुमार देवी का, तो उसका तो सलूक ही उसके साथ अनोखा है। एक वो मौका था कि ये उसको चाहने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी, उससे मंसूब हो चुकी थी, और फिर उसकी एक भागने की गलती ने उससे सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। जहां वो प्यार के काबिल था वहां उसे तमाचों के काबिल बना दिया गया, जंजीर पहनाई जाने के लायक समझा दिया गया। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर कहने लगा, पिताजी मैं उसकी सजा शुरू होने से पहले कई मौके पर उसके पास बैठ चुका हूँ। वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। अपनी जिंदगी में वो चूंकि बहुत धक्के खा चुका है, लिहाजा हमारी निस्बत वो जिंदगी का वैसी तजुर्बा भी रखता है। यहाँ तक कहते कहते रामदेव को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में कुमार देवी बोलते हुए कहने लगी, भाई आखिर ये जो तुम इस कदर तमीज बांध रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अपने मतलब की तरफ आओ। रामदेव ने होठों पर जुबान फेरी, फिर कहने लगा, पिताजी मैं आपसे अहबाज से मुताल्लिक मुलाकात करने की इजाजत चाहता हूँ। एक बार आप मुझे उससे मिलने की इजाजत दें। हो सकता है जिस रास्ते पर आप उसे देखना चाहते हैं, मैं प्यार मोहब्बत से उसे उस रास्ते पर लाऊं। रामदेव की इस गुफ्तगू के जवाब में नफरत और बेजारी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, वो राह रास्त पर आने वाला नहीं है, वो नफरत के काबिल है। अब तो वो इस काबिल हो चुका है कि उसकी गर्दन काट दी जाए। कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, भाई अब मैं तुम्हें इससे मिलने से रोकूंगी नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम उससे मिल सकते हो। अब अगर वो राह रास्त पर भी आ जाए तब भी मेरी निगाह में वो गिर चुका है, पहला मकाम हासिल नहीं कर सकता, ना मेरी मंगनी उससे बहाल होगी, ना मेरा उसके साथ कोई रिश्ता और राब्ता होगा। मेरे पास अब उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। अगर वो राह रास्त पर आ भी जाता है तब भी उससे ये कहना कि मेरे सामने ना आए, इसलिए कि मैं उसकी शक्ल देखने की भी रवा दवा नहीं हूँ। कुमार देवी जब खामोशी तब कुछ सोचते हुए भीमदेव ने रामदेव को मुखातब किया, बेटा अगर तुम उसे दुरुस्त कर सकते हो, राह रास्त पर ला सकते हो, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है। इस लड़के को हम लश्कर में शामिल कर सकते हैं। देख बेटे, अगर कुमार देवी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसे सगाई या अपनी मंगनी को बहाल नहीं रखना चाहती, तो ना सही, ये लड़का वैसे भी लश्कर के अंदर हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है। जंगी फिल्म की जो महारत रखता है वो महारत दूसरे लश्करियों को भी मुंतकिल कर सकता है। तुम ऐसा करो, उसको यहाँ बुला लाओ, हम सब उसके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम उसे इज्तिमाई मोहब्बत देंगे तो हमारी मोहब्बत ठुकराएगा नहीं। भीमदेव के इन अल्फाज पर रामदेव खुश हो गया। किसी को आवाज देकर उसने बुलाया। उस पर एक खादिम दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसे मुखातब करके भीमदेव कहने लगा, अहबा के कमरे की तरफ जाओ और उसे बुलाकर यहाँ लाओ।